Good morning, dear students. So now we have to start exercise 13.1, question number 6. Okay. So in this question, we have to simplify. Simplify means we have to open the exponents and then we have to multiply, we have to change into simplified form. So let's start now. 2 की power 1 into 10 की power 3. If you don't have any power, it means what is present at the exponent 1 is present. Okay, now simply you have to open, 2 is written one time only. Now 10 power 3 means you have to write 10. How many times? You have to write 10 3 times. So let's open now. 10 into 10 into 10. Okay, we have done. Now simply multiply 2 like this only. How many 10 are there? 3. So 1 into 1 into 1, it will be 1. How many 0? 1 2 3. 1 2 3, it means 1000. Now multiply 2 with 1000, it will be 2 1 are 2 and 3 0, it will be 2000. Now this is we have simplified it. Okay, same way you have to open the powers and then you have to simply multiply. Is it clear? So now you can see the solution here. This we have done. Next 7 power 2, 2 की power 2, it means 7 you have to write 2 times. 2 you have to write 2 times and then you have to get multiplied. 7 sevens are 49, 2 twos are 4, 49 into 4 will be 196. Okay, next 2 की power 3 and into 5 की power 1. So 2 is 3 times, you have to open 3 times. 1 2 3. 5 is 1 time. Okay, so if multiply 2 to the 4, 4 to the 8. 8 into 5 will be 40. Now 3 into 4 की power 4. So 3 1 time, 4 4 time. So we have to write 4 time. Now multiply it. 4 4s are 16, 4 4s are 16. Okay, so just multiply. When you will multiply all the numbers, 3 into 16 into 16. Okay, and you will get 768. 16 3s will be 18, 3 6 are 18, 3 4 48. Okay, and when you will multiply 48 with 16, simply multiply, you will get 768. Okay, next fifth, 0 into 10 की power 2. 0 10 you are having 2 times. 10 into 10. So you know whenever you are multiplying any number with 0, you will get always as 0. So no need to multiply the number. If you are saying 0 in the multiplication, directly write 0. Okay, 5 की power 2 into 3 की power 3. Open 5 2 times, 3 3 times, and when you will multiply 5 5 is 25, 3 3 is 9, 9 is 27, then you will get 675. Okay, next 2 की power 4, 3 की power 2. Open 2 4 times and 3 2 times. Okay, now when you will multiply 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 into 9, you will get 144. Okay, next 3 की power 2, 10 की power 4. Okay, then simply multiply in the same way. When you will multiply 3 2 times and 10 4 times, then 3 is a 9, it will be 1 1 1. When you will multiply by 1, you will get 1, and how many 0? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Then you will multiply, you will get 90,000. Okay, so here we have completed question number 6. Come on question number 4, question number 7. Come on question number 7 now. Here we have completed question number 6. Simplify again, same way we have to do, but here we have they have given the negative रेशनल नंबर. यहाँ इन्होंने नेगेटिव नंबर्स दिए हैं, तो बस आपको पावर्स का ध्यान रखना है, माइनस लगाते हुए साइन का ध्यान रखना है, अदरवाइज वी हैव टू डू इन द सेम वे. द -4 power 3, it means -4 you have to write how many times, and please use the bracket. Okay, how many times? 3 times. Now first multiply the numbers. Similarly you have same way you have done in a previous question. 4 4 are 16, 16 4 are 64. पहले हमने 64 लिखते. ठीक है, अब याद रखिए हमेशा, अगर किसी भी रेशनल नंबर या होल नंबर्स की पावर अगर आपके पास इवन है, तो हमेशा आंसर में क्या आता है? आंसर में क्या आएगा? प्लस आएगा.
लेकिन अगर ऑड है, यहाँ आपकी पावर ये आप कट करना, यहाँ आपकी 3 दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, ये आपका दे रखा है 3। तो कभी भी पावर आपकी ऑड है तो आंसर में हमेशा माइनस आएगा, और पावर आपकी इवन, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ अगर पावर 2 इवन होती तो आंसर में आपका क्या आता है, वो 4 से 16 हमेशा प्लस। सिंपल इतना याद रखिए। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, आई एम रिपीटिंग वंस मोर, वेन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग एनी नेगेटिव इंटीजर्स एंड यू हैव पावर, ठीक है, अगर आप यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर आपके एक्सपोनेंट में नेगेटिव पावर है देन यू विल गेट माइनस साइन, क्योंकि आप इसका -4 का मतलब क्या हुआ कि माइनस के ऊपर भी पावर 3 है, अब कुछ नहीं होता, आप 3 लिखो और उसके बाद 4 के ऊपर भी पावर 3, ठीक है। तो आपने 4 को तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज 64, लेकिन माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर पावर ऑड हो तो आंसर में हमेशा नेगेटिव आएगा, और अगर यहाँ पावर इवन होगी देन यू विल गेट पॉजिटिव। Is it clear? That is why minus a equal to odd power will be minus a odd power is written. Okay. Now next one is minus 3 into minus 2 की power 3. So minus 3 तो 1 टाइम है, minus 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम, तो राइट 3 टाइम्स। ओके, सिंपली मल्टीप्लाई, पहले नंबर मल्टीप्लाई करिए, -3 ऐसे ही आगे, पहले नंबर मल्टीप्लाई करिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 लिख दिया। हाउ मैनी माइनस आते हैं यहाँ देखिए कि पावर क्या आती है, 3 3 और नंबर तो यहाँ -8 आ गया, ठीक है। अब आप सिंपल मल्टीप्लाई करिए, 8 3 ज़ा 24, 24 आ गया। मल्टीप्लिकेशन में माइनस को आप काउंट करिए, नंबर्स को कितने काउंट, हाउ मेनी माइनस आते हैं, 1 1 2, 2 माइनस है, 2 माइनस है तो 2 इवन नंबर, तो आंसर में हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर यहाँ 3 माइनस होते, यू काउंट द नंबर ऑफ माइनस, इफ दे आर 3 दैन इट इज ऑड नंबर, देन यू विल गेट माइनस इन द आंसर। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, -3 power 2, इट मीन्स यू हैव टू राइट -3 2 टाइम्स। ओके, -3 आपको लिखना है 2 टाइम्स, और -5 की पावर भी 2 है, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ओपन करें पहले -3 को 2 टाइम्स, और फिर आप क्या करो, -5 की पावर भी 2 है तो आप इसे भी 2 टाइम ओपन करो, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यू हैव टू यूज द लॉज, बिकॉज यू हैव लर्न द लॉज, ट्राई टू अप्लाई टू फ्रॉम द लॉज ओनली। सो यहाँ आप देख रहे हैं इट बिकम, क्वेश्चन बिकम ईजी, क्वेश्चन आपका ईजी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि -3 के ऊपर भी 2 पावर है, -5 के पास पे आपका एक्सपोनेंट 2 है। वेन एवर यू आर हैविंग द सेम एक्सपोनेंट बट डिफरेंट बेस, तो आप ध्यान रखिए आप एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, आप बेस को एक साथ लिखेंगे और आपकी जो पावर है वो आपकी एक बार ही आ जाएगी। अब सिंपल आप मल्टीप्लाई कर लिए, 3 5 विल बी 15, ठीक है, 15 प्लस का 15 आएगा क्योंकि कितने माइनस है, 1 2 2 माइनस है, प्लस का 15 के ऊपर पावर 2, अब आपको एक ही बार मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब आप एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे 15 की पावर 2, when you will multiply 15 2 times then you will get 225. Okay, loss you have to remember, loss you have to learn, you have learned a की power m, b की power m, it will be a b power m. Similarly fourth part is -2 की power 3 into -10 की power 3. Okay, so when you will multiply again, so here power is same, तो आप क्या सिंपल क्या करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई करिए, पावर 3 आ गई। अब आप देखिए 2 10 20 प्लस का 20, बिकॉज 1 2 माइनस इज 10, 2 इज अ even number, that is why plus 20. अब 20 power 2 it will be 20 into 20, 20 into 10, 20 will be क्या होगा, 20 into 20 बताइए, 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स नहीं है, 3 टाइम्स है, ठीक है, इसे आप 3 टाइम्स कर लो, ये 20 की पावर 3 है तो ये होगा 8000. ओके, सो हेयर वी हैव फिनिश अवर क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 नाउ, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कंपेयर द फॉलोइंग, आपको कंपेयर करना है। दे हैव गिवन 2.7 इंटू 10 की पावर 12, यहाँ आपका डेसिमल नंबर भी उसके साथ आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको नंबर दे रखा है, ठीक है, 10 की पावर 12। सेकेंडली आपको एक दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर 8। ओके, अब आप इसमें क्या करेंगे, देखिए आप इस बात का ध्यान रखें हमेशा, देयर इज़ मैनी मैथड टू डू, बट मैं आपको सिंपली एक मैथड बता रही हूँ, जिसकी पावर, देखिए आप यहाँ नंबर को देखिए, आप यहाँ पे जिसके ऊपर पावर है बेस नंबर एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जो है उसे देखिए, यहाँ 10 की पावर 12 है, 10 की पावर 8 है, बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। अगर आपको नंबर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बहुत ईजीएस्ट वे है ये, वैसे मैथड और भी होते हैं लेकिन ये ईजीएस्ट वे है
आपका अगर बेस, आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन को देखिए, यहाँ 10 की पावर 12 या 10 की पावर 8 है, यहाँ बेस सेम है लेकिन पावर्स एक्सपोनेंट डिफरेंट है। जिसका एक्सपोनेंट ग्रेटर होगा वो पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर ग्रेटर होगा, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ 12 ग्रेटर है 8 से, क्योंकि बेस सेम है, यहाँ 10 तो सेम ही था ना, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, जिसकी पावर ग्रेटर वही पूरा नंबर ग्रेटर। तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर 12 ग्रेटर हो गया 10 की पावर 8, इट मीन्स 2.1 इंटू 10 की पावर 12 इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10 की पावर 8। इज इट क्लियर? ओके, सेकेंड पार्ट अगेन, यहाँ बेस इज सेम, 10 की पावर 14, 10 की पावर 17, यहाँ आपकी बेस सेम है, ठीक है। तो सिंपल आप पावर देखिए, 10 की पावर 17 ग्रेटर है, 17 ग्रेटर, इट मीन्स आपका इफ 10 की पावर 17 ग्रेटर है तो कौन सा वाला टर्म आपका ग्रेटर होगा? ये वाला टर्म। तो ये 3 इंटू 10 की पावर 17 इज ग्रेटर देन द 4 इंटू 10 की पावर 14। इज इजी नाउ, ठीक है, कुछ भी नहीं था, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन का अगर स्पेस सेम होते हैं, पावर्स डिफरेंट होती हैं, तो जिसकी पावर ग्रेटर दैट नंबर, complete number will be greater than the other number. Is it clear now? These are the things you have to revise, you have to remember. So here we have completed our exercise 13.1. If you like the video, so please like, share and subscribe. Thank you. Now soon I will meet you in the next video of exercise 13.2. Till then, stay blessed, stay safe. Thank you.